capital expenditure of 5 lakh rupees a capital expenditure of 5 lakh rupees in cash would result into cash inflows of 1.5 lakhs would result into a cash inflow of 1.5 lakhs annuity for 4 years. For 4 years. If the cutoff rate is 6%, compute the NPV of this project. Compute the NPV of this project. A capital expenditure of 5 lakh rupees would result into a cash inflow of an annuity of 1.5 lakhs for the next 4 years. If the cutoff rate is 6%, compute the NPV of the project. So you can use the tables. You can go to Google, you can just type present value tables, you will get the annuity table, you can use it and you can get the answer. All of you, make an attempt so that we have a recap. Come here, ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? Approximately 20,000. So NPV क्या हुआ? 19,760. Positive. ये लिखना जरूरी है positive. तो 6% पे you will accept the project. और लोग भी कर ले? Yes. Good. ठीक है 20,000 ठीक है. It's okay. So all of you got the answer? 2 मिनट रुक जाते हैं. You got the answer? Again? Yeah, now 1.5 into what is the cash inflow? 1,50,000, no? So you have to multiply this by 1,50,000. How much do you get? After you get the present value annuity factor, then you have to multiply the annuity with that factor to arrive at the present value, isn't it? समझ लो बेटा, ये समझना जरूरी है. MBA है, मजाक नहीं है जो आप लोग कर रहे हो. आ गया आप लोगों का 3.46 आ गया बेटा. So multiply it by 1,50,000, you will get the present value. How much is the present value of the cash inflows? 1.5 lakhs multiplied by 3.4651 है ना? कितना आता है? Yes, 19,000 something. So that means अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब समझो पहले आप लोगों ने क्या किया है, इसका मतलब समझो. इसका मतलब ये है कि our job is to find out if the ability of the company is to earn 6%, then 1,50,000 received after 1 year by the company is not equal to 1,50,000 of now. So we have to find out the present value of all the future cash flows which are going to happen in the company. देखो कैश आउटफ्लो तो आज की दी है,
he has told you that the company will have a cash outflow of 5 lakh rupees. That means today the company is going to expend 5 lakh rupees in capital expenditure. Right? Today का मतलब अभी present value. So present value of the cash outflow is 5 lakh rupees. Now against this capital expenditure, the company expects to make 1.5 lakhs year after year for the next 4 years. First, the question should be clear to all. Question clear हो गया? Now 1.5 lakh received year after year for the next 4 years amounts to 6 lakh rupees. So one could easily say कि भाई 6 लाख रुपया 5 लाख से ज्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन हम लोगों ने समझा है कि 1 rupee of today is not equal to 1 rupee of tomorrow. तो इसका मतलब जो 6 लाख रुपए टोटल कर रहे हो वो आज के 6 लाख के बराबर नहीं है. 5 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है वो आज का खर्चा है, अभी खर्चा किया है. Right now you have expended that money, but you are receiving 6 lakh rupees in totality, and it is happening in the next 4 years. That means this is not the amount of money, real money which the company is receiving. वो पैसा कुछ कम होगा इससे. 1 rupee of today is not equal to 1 rupee of tomorrow. So 1.5 lakh rupees received after 1 year is not equal to 1.5 lakh rupees of today. 1.5 lakh rupees received after 2 years is not equal to 1.5 lakh of today. So to compare the two and say that the company has earned much more than what it has expended, it is, अगर क्वांटम में देखो तो ठीक स्टेटमेंट है. भाई 6 लाख कमाया है, 5 लाख का खर्चा हुआ है, तो 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया है. लेकिन ये 1 लाख रुपए ज्यादा कमाने में उसको 4 साल लग गए, जो उसका आज खर्चा आज हुआ है, और 1.5 लाख रुपए उसको अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा. So that 1.5 lakh which is going to be received in future period of time is not equivalent to 1.5 lakh of today. So we understood that money has got a time value, and time value is different for different individuals. मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि रतन टाटा के लिए अलग है, धीरू भाई के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए टाइम वैल्यू अलग होती है. One major reason why time value is different for everyone is the ability of earning. हर आदमी की ability earn करने की different होती है, तो हर आदमी की time value of money भी different होती है. Inflation सबके लिए same है. So 1 rupee of today is not equal to 1 rupee of tomorrow because of inflation. वो तो सबके लिए same है, लेकिन ability of earning is different. This company has got an ability of earning of 6%. So I say the discounting factor of this company or the cut-off rate of this company has been decided as 6%. इसका क्या मतलब हुआ कि एक अगर आज तुम 10 रुपए इस कंपनी को 100 रुपए देते हो, तो ये कंपनी 6% पे इस अमाउंट को 106 रुपए बना देगी 1 साल बाद. इसका मतलब for this company 106 years received after 1 year is equivalent to 100 rupees of today. So we have to find the present value of all the 4 cash flows which the company is going to receive in the next 4 years. तो 2 तरीके हैं. एक तरीका तो है कि आप 1.5 लाख को 1,50,000 divided by 1.06 to the power 1 कर दीजिए, तो this will be the present value of 1,50,000 rupees received after 1 year. Now what will be the present value of 1,50,000 received after 2 years? That will be 1,50,000 divided by 1.06 to the power 2. For the third year it will be 1,50,000 divided by 1.06 to the power 3. And for the fourth year it will be 1,50,000 divided by 1.06 to the power 4. So you can find the present value of all the cash flows using this particular concept. This is the compound interest concept. Is that clear to you? Is that clear to everyone? Instead of using and identifying and calculating 4 times, you can use this annuity table. In the annuity table, you have to consider 6%, which is the earning ability given to you in the question, and 4 years lifespan. The present value annuity factor is 3.465. So the value would be, present value would be 1,50,000 into 3.465.
this amount will be equal to these four items added together. So this present value annuity table is used for shortening the exercise of computing the present values individually and then adding them together. अब ये 4 साल का है, या तो कर दिया मैंने खटाखट, अगर 15 साल का होता तो आपको 15 बारी करना पड़ता, तो आप एनुटी फैक्टर यूज कर लीजिए. Is that okay? So now we know that the present value of cash inflows is more than the cash outflow which is happening today. And how much is it more by? In case we compare it on today's money value, it is more exceeding it by 19,000 something. So the answer of 20,000 is correct. And the NPV is positive in this case. That means the company is earning 6% plus 20,000 rupees. That means the company is earning more than 6%. Then the second question is, how much is the company actually earning? It is earning more than 6%, we have understood. How much in terms of percentage is the company earning? So that we have to find out. That is called the internal rate of return. That is the IRR. So then let us find out how much is the company earning in this case. We know it is earning more than 6%. But is the answer 7% or 8% or 6.5% or 9%? What is the actual earning which the company is making in this particular project? ये भी निकाल लेते हैं. तो ये 6% से ज़्यादा है, हमें मुझे तो मालूम है. तो let me assume any discounting factor, any rate which is higher than, we know it is higher than 6%. ये तो हमें मालूम हो गया. How much higher we don't know. So we have to make a guesswork. So let us guess. 19,000 is pretty close to 5 lakh rupees. I mean, you see the company is, we can make a understand. उससे समझ में आता है कि the company is earning somewhere around 6%, 7%, 8% के आसपास होगा. कितना है निकालना है. So let us make an assumption. Let us say that the company earns 10%. Let us find out what the present value of the cash inflows is at 10%. So we can again use the annuity table. We can take 10% and 4 years and we can see what is the present value of 1,50,000 being received by the company for the next 4 years. Right? We can do it this way. तुक्का लगा रहे हैं हम 6% पे हमने निकाल लिया. सर हमें मालूम है 6% ज्यादा कमा रही है कंपनी, अब कितना कमा रही है हमें निकालना है. तो हमने गैस मारा कि चलो 10% पे ट्राई करके देखते हैं. अगर 10% कमा रही होगी, तब अगर 10% पे तुम एनुटी निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट 5 लाख आ जाएगा. अगर 10% नहीं कमा रही होगी तो 5 लाख नहीं आएगा, कुछ और आएगा. तो देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है, तो अभी देखो ये आंसर आया हमारा, कितना आया? 5,19,000. 6% पे आया है 5,19,000. कितना था सत्यप्रकाश? 750? 765. चलो 50 लिख देते हैं, राउंड फिगर्स कर देते हैं. लेट अस राउंड फिगर कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब 10% पे तुक्का देखो, ये हमें कम करना है. हमें वो आंसर चाहिए जिसपे हमारा प्रेजेंट वैल्यू 500,000 हो जाए एग्जैक्ट. हमें ये वाला आंसर चाहिए. हमें वो परसेंटेज चाहिए जिसपे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज एग्जैक्टली 5 लाख हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने इतना अर्न कर लिया. हमने जितना खर्च किया था, अगर हम इतने परसेंटेज पे डिस्काउंट करते हैं तो हमारा आंसर 5 लाख ही आ जाता है. तो हमें ये निकालना है. राइट. तो लेट अस अज्यूम 10%. 10% पे कितना है एनुटी फैक्टर? देखो जरा, 3.17. So 1 lakh 1,50,000 multiplied by 4,75,500. चलो 500 कर देते हैं. 485. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ना तो कंपनी 6% कमा रही है, ना ही कंपनी 10% कमा रही है. लेकिन 6% पे प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है 5 लाख से, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू कम है 5 लाख से. हमें 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितने परसेंट पे चाहिए? तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा आंसर 6 और 10% के बीच में होगा.
है ना, ये दिख रहा है ना? तो लेट अस फाइंड इट आउट यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। 4% का डिफरेंस जो है, इट इज गिविंग मी अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच रुपीज इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। 0, 5, 2, 4, 4, 44,250। ये मैंने इसको ये 4% का फर्क है। It is being represented by a difference of 44,250 rupees in terms of rupees. Is that okay? So what is 1 rupee being represented by? Rupee 1 is represented by 4 upon 44,250%. अगर 44,250 रुपए बराबर है 4% के, तो 1 रुपया बराबर है 4 अपॉन 44,250%। इज दैट ओके? ये तो ठीक है ना, यूनिटी मेथड यूज कर रहे हैं बेटे, आपको ठीक है? इज दैट ओके? ओके ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? वी हैव गॉट आंसर व्हिच इज एक्सीडिंग 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू बाय 19,750। So we can take two approaches. We can either utilize the difference of 5 lakh and this amount, or we can start from the difference in 5 lakh and this amount. Either of the two approaches should get you the same answer. So let us first attempt with this amount. This amount is 19,750 rupees more than 5 lakhs. 1 rupee is representing this percentage. So how much is 19,750 rupees representing in terms of percentage? अगर हमें ये पता लग जाता है, तो we can just add this amount to in terms of percentage. We can add it to 6% and we'll get our answer, isn't it? 6% पे तो तुम्हारा ये आंसर है। एक रुपया जो है वो इतना परसेंट है। 19,750 रुपए तुम्हारा आंसर ज्यादा है, तुम्हारी एनपीवी पॉजिटिव की है। तो 19,550 rupees is equal to how much? Is equal to 4 into 19,750 divided by 44,250। तो इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके। Just see how much is it? 1.78 is equal to 1.78%. So you can conveniently say that your answer is 6 plus 1.78, that is 7.78%. That the company is earning 7.78% on this project. This is the IRR of the company, internal rate of return of the company. Is that okay? नीचे से भी कर सकते हैं। How much is this amount less than 5 lakh? It is 24,500 rupees less than 5 lakh. So what is 24,500 rupees equal to? We can find it out. 1 rupee is equal to this percentage. So what is 24,500 equal to? It is equal to 4 into 24,500 divided by 44,250. Is that okay? So again you can get the answer. कितना आ रहा है? 2.21. 2.21. So you can reduce 2.21 from here. So you get again 7.8%. Is it? So both ways you will get the same answer. Is that okay? At the back bench? Is it okay? ठीक है बेटे पीछे? This is called the internal rate of return. तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पेबैक पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में अपना पैसा वापस मिल रहा है? कितना पैसा खर्च कर रहा है प्रोजेक्ट? 5 लाख रुपए। 5 लाख कितने टाइम में वापस मिल रहा है? पहले साल में 1.5 लाख वापस मिल रहा है, दूसरे साल में फिर 1.5 लाख वापस मिल रहा है, तो 2 साल में 3 लाख वापस मिला, तीसरे साल में भी 1.5 लाख वापस मिल गया, तो तीसरे साल तक इसको कितना मिल गया? 4.5 लाख मिल गया। अब बात यह है कि बचा कितना? 50,000। चौथे साल में 1.5 लाख टोटल वापस मिला है। 50,000 कितने महीने में मिला होगा? 4 महीने में। तो 3 साल 4 महीने इसका पेबैक पीरियड हो जाए कंपनी के प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब देखो जब पेबैक मैंने निकाला तो कोई आर्ग्यू कर सकता है कि सर आप पेबैक में क्यों नहीं प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं? भाई अगर आप कह रहे हैं कि पेबैक पीरियड इज 3 years 4 months,
So we are not assuming the present value, we are just totaling the total amounts of different periods and finding the payback, isn't it? We are not getting the discount. क्योंकि देखो अदरवाइज अगर आर्ग्यू करोगे इस तरह से तो तुम्हारा क्या होगा आंसर? दो तरह से आंसर निकल सकते हैं. एक आंसर आएगा तुम्हारा 5 लाख का खर्चा है, तुम्हारा पहले साल में 1,50,000 तुम्हारा आएगा. इसकी वैल्यू कितनी है कंपनी के लिए? 1.06 टू द पावर 1. दूसरे साल में फिर 1,50,000 आया, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.06 टू द पावर 2. तीसरे साल में फिर 1,50,000 आया, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.06 टू द पावर 3. और चौथे साल में फिर 1,50,000 आया, इसकी वैल्यू है 1.06 टू द पावर 4. सबकी वैल्यू अलग अलग निकालो, अलग अलग निकालते हैं. बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसकी कितनी वैल्यू है? हाउ मच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,50,000 रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर विद दिस गवर्नमेंट? कितनी है? 1,41,509. सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख कम हो जाएगी ना? कितनी हो जाएगी? हाउ मच? 1,30,499. फोर्थ ईयर की, थर्ड ईयर की कितनी है? 940. और फोर्थ ईयर की कितनी है? 1,18,814. ठीक है. अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालिए. इसका क्या मतलब हुआ कि इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू टुडे द कंपनी विल रिसीव 1,41,509 रुपीज ऑफ इन द फर्स्ट ईयर. आज की वैल्यू पे पहले साल के बाद जो पैसा मिल रहा है उसकी आज क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 1,41,509. 2 साल बाद जो पैसा कंपनी को मिल रहा है 1,50,000, उसकी आज क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 1,33,000. है ना? तीसरे साल जो पैसा मिल रहा है 1,50,000, उसकी आज क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 1,25,940. और चौथे साल क्या मिल रहा है? उसकी क्या वैल्यू है? 1,18,814 रुपीज. अब हम ये देख सकते हैं कि हमें 5 लाख रुपए आज की वैल्यू पे वापस कितने टाइम में मिल रहा है? पहले साल में इतना मिला, दूसरे में इतना मिला, तीसरे में इतना मिला, तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख. कितना होता है? 4,948. 4,948. Is that okay? इतना मिला. और इसका मतलब the company has not been able to recover the entire 5 lakh rupees in the first 3 years. The company is only able to return 4,948 rupees after the end of 3 years. After the end of 4th year, how much the company has recovered? 5,19,000. कितना निकाला था तुम लोगों ने? 750. ये टोटल कर दोगे तो ये करीब करीब इतना ही आ जाएगा. ये ना हाउ मच इट विल बी देख लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा अलग आएगा. 8,4,12, 1, 4,1,5,1,6, 9,8,17, 8,1,9, 1 and 5,19,750 हमने निकाला था. 62 आ गया. इसका मतलब 3 साल बाद कंपनी को पैसा वापस नहीं मिला है प्रेजेंट वैल्यू पे, और चौथे साल में मिल चुका है, और चौथे साल में 19,000 ज्यादा मिल चुका है. तो एग्जैक्टली 5 लाख कब रिकवर किया कंपनी ने? इट इज बिटवीन 3 and 4 years. फोर्थ ईयर में कितना रिकवर किया है? 1,18,814 रुपीज एज ऑफ टुडे. तो आप निकाल सकते हो कि 90. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 लाख एंड 4,948? इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये कितना हो गया? 4,948. 4,01,000 हो गया अप्रोक्सीमेटली, isn't it? So you can say that the company has to recover 90,000 rupees more in the 4th year to break even. तो 90,000 कितने टाइम में निकला होगा? अगर 1,18,814 रुपए 12 महीने में आया, तो 90,000 कितने महीने में आया निकाल सकते हो? ये कैलकुलेट कर सकते हो. आई नॉट डू इट ओवर हियर. सो योर आंसर विल बी 3 years and say 10 months or 9 months. You can go into days also. 365 दिन का पूरे साल मान के you can find it out.
If 1,18,814 is recovered in 365 days, then in one day how much you recover? And how much do you need to recover? How much was it? 99,000. So 99,000 कितना दिन लगेगा वो निकाल सकते हो यहाँ पे। तो देखो दो तरह से आंसर आ रहा है। एक तरह से आंसर आ रहा है जिसमें मैं ले रहा हूँ 1,50,000 recovered in the first year without taking the present value, 1,50,000 recovered in the second year, 1,50,000 in the third year, and 1,50,000 in the fourth year. अगर मैं present value नहीं लेता हूँ, then when the company is recovering this money, in the third year it is recovering 4,50,000 rupees. It is left with 50,000. So you said 4 months. 3 years and 4 months will be the answer. यहाँ पे I am taking the present value of all these amounts and then finding how much time the company is taking to recover. So that answer is coming as 3 years and maybe 10 months. So the two answers are different. This is called a discounted payback. I am discounting the money and finding the payback period. Whereas over here I am not discounting the money, I am finding an absolute payback. So these are two techniques to find a payback period. If you will read Indian books, you will find both the techniques given to you. But if you will read an American or a European book, you will not find this technique given. Only this technique will be given over there. So what is the reason that they only use this technique? उसका एक reason है. उसका रीजन ये है कि कंपनीज पेबैक पीरियड को कब चूज करती हैं एज अ क्राइटेरिया टू चूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? Why are we doing all these things? We have to decide whether the capital expenditure is worthwhile or not for the company. इसीलिए तो कर रहे हैं ये सारा सब कुछ. That is the reason why we are doing this. You as the MBA will be asked कि इंजीनियर कह रहा है इतना खर्चा करना है, हमें बताइए कि इस खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो how will you suggest? You will find out the NPV and IRR. You will be given the company's cut-off rate by the management. कि कंपनी इतने में बेंचमार्क है कंपनी का. यहाँ पे कंपनी का बेंचमार्क 6% में था. यही तो होगा. एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा? When you join a company, कंपनी को सपोज एग्लोमरेटर खरीदना है. एग्लोमरेटर 20 करोड़ का है. 20 करोड़ का खर्चा करना है कि नहीं करना है? The manager will call you. भाई आप एमबीए हो और किसको बुलाएगा वो? और किसी को नहीं आता ये सिर्फ एमबीए को आता है. तो एमबीए को बुला के वो कहेगा कि मुझे बताओ ये 20 करोड़ का ये लोग खर्चा सजेस्ट कर रहे हैं, ये मैं करूं कि नहीं करूं? तो तुम फिर दौड़ भाग करके पता लगाओगे कि 20 करोड़ का अगर खर्चा किया जाएगा तो क्या क्या कैश फ्लो हमें आगे मिलेगा. वो तुम्हें यहाँ बता दिया गया है कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए हर साल मिलेगा 4 साल तक के लिए. ये एस्टिमेट दे दिया गया है तुम्हें. जब तुम्हें ये दोनों चीजें पता लग जाएंगी और कट ऑफ रेट तुम्हारे पास होगा, यू विल फाइंड आउट द एनपीवी एंड आईआरआर. सिमिलरली द कंपनी आल्सो फाइंड्स द पेबैक पीरियड. नाउ पेबैक पीरियड इज फाउंड इन सिचुएशंस वेयर देयर इज अ टर्मोइल इन द मार्केट and company wants to have capital projects which give the money back quickly. जब कंपनी ये चाहती है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जिसमें कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाए, तब पेबैक पीरियड यूज करती है कंपनी एज अ क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर वी शुड पिक अप अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट. ये कब होता है? जैसे बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, वॉर हो रही है, तो कोई भरोसा नहीं कल 1 रुपए की वैल्यू क्या रह जाएगी. बुरी तरह से इन्फ्लेशन हो सकता है, देयर इज अ चांस. ऐसे पीरियड में कंपनी पैसा जब लगाती है तो वो इस चक्कर में रहती है कि पैसा ऐसी जगह लगाओ कि रिकवरी जल्दी हो जाए, क्योंकि कल का भरोसा तो है नहीं कोई. तो दे वांट द रिकवरी टू बी मेड क्विकली. तो क्योंकि कंपनी रिकवर क्विकली करना चाहती है और तब पेबैक पीरियड यूज करती है, दैट इज व्हाई दीज फॉरेन राइटर्स एंड academicians and practitioners, they don't use the discounted value. Discounted value का मतलब क्या है? Present value of money received after some period is not equal to 1 rupee of today. लेकिन यहाँ पे तो आप इस चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस मिले तब मैं पेबैक पीरियड लगाऊं. तो क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए होता है,
तो वो फिर ये नहीं देखते हैं कि डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, क्योंकि आगे की वैल्यू क्या होगी वो तो टर्मोइल में है मामला. दे आर नॉट श्योर हाउ मनी वैल्यू विल चेंज. आज तुम 20 रुपए का कोका कोला खरीद रहे हो, कल पता लगा 300 का एक कोका कोला मिल रहा है. इतनी महंगाई हो गई, वॉर हो गई. तो ऐसे पीरियड में कल का 1 रुपया आज के कितने के बराबर है ये एज्यूम करना ही बहुत मुश्किल है. Isn't it? So the companies, these practitioners, what they do is they take the absolute amounts. They don't take the discounted amounts to arrive at the payback period. But Indian authors ने दोनों तरह से लिखा है. मैंने पढ़ाया भी आपको दोनों तरह से. अब तो हम लोगों का, देसी लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर एक चीज आती है तो उसको हर जगह यूज करके देख लो. तो हमें डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी अब आ गई है, तो हम डिस्काउंटेड पेबैक भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट पेबैक भी निकाल सकते हैं. लेकिन एग्जामिनेशंस में और थ्योरेटिक प्रैक्टिकली व्हेन यू विल बी वर्किंग, यू विल नॉट बी यूजिंग डिस्काउंटेड पेबैक. पेबैक हरदम जो है एब्सोल्यूट अमाउंट्स में निकालना चाहिए, बिकॉज द पर्पस ऑफ पेबैक हैपेंस during times of a turmoil, and when there is a turmoil you need money to be recovered quickly, and the future value of money brought back to the present value, you don't have an exact discounting factor in such situations. अभी यूक्रेन में तुम कोई प्रोजेक्ट डालोगे, वहां पे क्या हाल है, कल क्या हाल होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं. अब एनपीवी निकालोगे 20 साल में पता लगा यूक्रेन गायब हो गया नक्शे से ही. तुम एनपीवी निकाल रहे हो कि 20 साल का प्रोजेक्ट में लूंगा, 20 साल में रिकवर करूंगा पैसा. यूक्रेन ही नहीं रहेगा 20 साल में, तुम क्या रिकवर करोगे. तुम चक्कर में होगे कि यूक्रेन में प्रोजेक्ट डालना है तो ऐसा प्रोजेक्ट डालो कि जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा, 2 साल में वापस मिल जाए, 3 साल में वापस मिल जाए. तो उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है. Isn't it? So that is the logic why payback periods are not identified by foreign writers and academicians and researchers for computing. They don't use the discounting concept while computing the payback period. Is that okay? समझ गए ना? Okay. क्योंकि ये एक conceptual dispute आ जाता है, क्योंकि कुछ किताबें जो इंडिया में हैं, आपको भी जो रिकमेंड करी गई है, मिल गई किताब आपको? हाँ, उसमें भी मेरे ख्याल से डिस्काउंटेड पेबैक दिया गया है. प्रसन्न चंद्र मिली है ना? ओके. नाउ सी, एक क्वेश्चन तो आता है आपके एग्जामिनेशन में जिसमें यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पेबैक पीरियड, द IRR एंड द NPV. और 2 कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक क्लियर कर लिए हैं. 3 कॉन्सेप्ट्स. एक कि these calculations are done using cash flows. You do not use profits to evaluate projects. You use cash flows to evaluate projects. Number 1. Number 2, the cash flows used are incremental cash flows. कि किस प्रोजेक्ट से एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा, एडिशनल खर्चे क्या होंगे, उन दोनों का डिफरेंस से पता लगेगा कि एडिशनल कैश फ्लो आपकी कितनी होगी. तो एक तो है यू कंप्यूट कैश फ्लोज, दूसरा यू कंप्यूट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, और तीसरा यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ कैश फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट. When I say that the project is getting 1,50,000 rupees as a cash inflow for the next 4 years, do I mean that it is 1,50,000 of profit being generated year after year for 4 years, or is it something else? This question is to you. My question is, when I say that the project is expected to earn 1,50,000 cash flow for the next 4 years, does this cash flow represent the profit, or is it different from the profit? We can assume आप BAM जो आपने पढ़ा है पहले साल में, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपने क्या पढ़ा था? Is profit equivalent to cash flow? No. Why? हमने क्वेश्चन किया था, एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है?
would want to hold money because they want to reinvest in some project. यही आंसर तुमने मुझे फर्स्ट ईयर में भी दिया था और मैंने इसके ऊपर एक और आंसर ऐड करके दिया था, वो तुम लोग भूल गए हो. कोई और someone else? Yeah, this is right. This answer is not wrong. This is the right answer. Accrual accounting, wonderful, wonderful, very good, very good. I am so glad someone, at least one person remembers. याद है accrual accounting? Accrual accounting क्या होती है? Accrual accounting में you have to book a transaction on the basis of performance. तो अगर सेल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पैसा बाद में मिलेगा, कोई बात नहीं. तो आप सेल को इन अकाउंट्स, उसका जो टोटल अमाउंट है उसको कंसिडर करेंगे एज रेवेन्यू अर्न, इवन इफ यू हैव नॉट गॉट कैश. तो नंबर वन, यू सी प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज आर स्लाइटली डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज profits are computed using accrual accounting, and accrual accounting is distinct from cash accounting. Accrual accounting is based on performance, not on the expenditure received or expenditure done on in terms of cash or revenue earned in terms of cash. It is revenue earned on terms of performance and expenditure done on terms of performance. आपके एम्प्लॉई ने काम कर लिया, उसकी सैलरी आपने दी या ना दी. अगर उसने काम कर लिया तो उसकी सैलरी को रिड्यूस करोगे एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट निकालने के लिए. दिस इज एक्रूअल अकाउंटिंग. तो एक तो ये रीजन है कि कैश फ्लो और प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं. लेकिन इसमें हम एक चीज अज्यूम कर सकते हैं, उसी ऐसा तो नहीं होता कि किसी कंपनी ने माल भेज दिया, उसको पैसा 3 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा. ऐसा तो नहीं होता है. नॉर्मली you will find that some companies get the money in 6 months time, some companies get money in 3 months time, some companies get money in 2 months time, some companies get money even quicker, they get it in 15. तो कौन सी कंपनी बेटर होगी? जिसको जल्दी पैसा मिलेगा, जिसको बाद में देर में पैसा मिलेगा? तुम्हारे हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर होगी, ज्यादा फायदेमंद होगा उसको? जल्दी पैसा मिलना, बाद में मिलना? जल्दी मिलना. बाद में किसने बोला था? बाद में क्यों बोला था? नहीं, इसलिए नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मजाक बनाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्यों बोला था बाद में. There could be a reason behind your answer. See, why do you think it will be better for a company to receive money at a later period of time? हम लोगों का जो फाइनेंस में जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जो पैसा आना है उसको जल्दी से जल्दी लेके आओ, और जो पैसा देना है उसको जितनी देर हो सके उतनी देर में दो. तो ये प्रिंसिपल बड़ा गलत बात है ये वैसे, कि आपको किसी को देना है तो देर में दीजिए, लेना है तो जल्दी लीजिए. बट व्हाई डू पीपल से दैट दिस इज, I don't accept this to be a basic principle of business. My personal opinion, I don't accept this as a principle. But बहुत से लोग ये फॉलो करते हैं. क्यों करते हैं ये फॉलो? Why do you think this principle is followed? ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है. आप इंटरव्यू के लिए गए, आप सोचते पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलना है, तुम्हें जल्दी चाहिए कि देर में चाहिए? जल्दी चाहिए. क्यों चाहिए? सीधे टाइम वैल्यू बनी होती है. जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी मैं इन्वेस्ट करूंगा, उतनी जल्दी मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा पैसे को. देर में दोगे तो मेरा पैसा फंस गया तुम्हारे पास. अगर 1 करोड़ रुपए तो मुझे 5 साल बाद दोगे तो वो आज का 1 करोड़ ही नहीं, वो तो आज का पता नहीं, बहुत कम पैसा है वो. Isn't it? So normally what I am saying is कि रेवेन्यू का कलेक्शन जो है वो ऐसा नहीं होता कि हो ही नहीं रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए. नॉर्मली 5-6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में पैसा कंपनी को मिल जाता है. नहीं मिलता अगर, तो तुम्हारे टाइप के एमबीएस को रिक्रूट करके तुमसे कहा जाता है कि तुम ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि हमें पैसा जल्दी मिले. तुम्हारा काम होता है. ये और किसी का काम नहीं है, ये भी एमबीए का काम है. ना ये इंजीनियर का काम है, ना ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है. पॉलिसी बनाना. क्या करोगे तुम? पैसा जल्दी मिले. सपोज करो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करते हो और मेरी कंपनी में तो रेवेन्यू बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी है
अगर सपोज करो 1 करोड़ रुपए मेरे को 4 महीने लगता है मिलने में, मैं कहता हूँ मुझे 2 महीने में दिलाओ, तो क्या करोगे 2 महीने में पैसा लाने के लिए? कोई कोई तो कुछ तो आइडिया होगा, क्या करोगे? एक तो गुंडे भेज दो उसके पास, बेस्ट आइडिया है ना? बेस्ट आइडिया यही है आजकल। गुंडे जो बैंक करता है, बैंक जब कलेक्शन करना होता है, जब तुम कार का लोन डिफॉल्ट करते हो, तो व्हाट डज द बैंक डू? इट सेंड्स सम लंबे चौड़े लोग, और वो भी कहाँ बेचते हैं? वो तुम्हारे ऑफिस में बेचते हैं वर्किंग आवर्स में, जिससे कि तुम्हारी बेइज्जती भी अच्छे से हो वहां पे 10 लोगों के बीच में। एंड they are called factors. These people who are sent by banks, they are called factors. और बड़ा गलत है ये, इस तरह से किसी बेचारे को हैसल करना कि आप मेरे पैसे जल्दी दीजिए नहीं तो मैं पिटवा दूंगा आपको। ये बहुत वेरी वेरी रॉन्ग। It's, you see, it is the combination of two unethical people. One who is not returning the money, that is also unethical. You shouldn't have taken the loan. And two, when you are using measures like sending a factor to that person to collect the money, when that is very unethical, that is no way. तो कोई बीच का अच्छा तरीका क्या होगा? क्या सजेस्ट करोगे? डिस्काउंट दे दो। अच्छा, डिस्काउंट भी जो है वो जितना दोगे उतनी जल्दी पैसा मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे 4 करोड़ रुपए तो कहो सर मैं अभी दिला देता हूँ, 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आपको 2 करोड़ अभी मिल जाएगा फौरन का फौरन। आप सेटल कर लीजिए 2 करोड़ में, आप कुछ नहीं, मेरा 2 करोड़ ऐसे ही चला जाएगा। सो ये डिसीजन हम लोगों को लेना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना दे सकते हो। ऐसे तो एक कहेगा कि मैं 2% में 2 महीने बाद दे आऊंगा, तो ये कहेंगी कि मैं सर 5% में 15 दिन के अंदर दे आऊंगी, तो ये कहेगी कि मैं तो सर 20% दे के अभी ला देती हूँ पैसा वापस। तो आप तीनों पैसा जल्दी ला के दे रहे हैं, लेकिन तीनों की क्वांटम ऑफ मनी विच विल बी रिकवर्ड विल बी डिफरेंट। So we have to study this also in a later stage कि ये डिस्काउंट जो है ये कितना देना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। नहीं तो आप सोचो आप अगर ऐसे ही छोड़ दोगे कि भाई जो जल्दी ला दे पैसा तो जल्दी ला दे, कितना जल्दी ला दे और कितना अमाउंट डिस्काउंट में दे दे, तो ये वी नीड टू सी दिस। बट फॉर नाउ वी जस्ट नीड टू कंक्लूड दैट revenue will be received in 2 months or 3 months or 4 months. So I can consider कि revenue जो है वो आज नहीं कैश में खर्चा हो रहा है, लेकिन मतलब रिसीव हो रहा है, लेकिन मे बी 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरे को एक फ्रेम ऑफ टाइम में वो पैसा मिल जाएगा। So accrual accounting का revenue can be considered as cash if you make an assumption कि मेरा टाइम फ्रेम जो है 3 महीने का है। You know, टाइम फ्रेम 3 महीने का क्या मतलब कि जैसे कैश अभी मिल जाए अगर किसी को, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो 2 महीने के अंदर एक ही बात है, मिल जाएगा। You can make an assumption कि I will assume that revenue or sales will happen in cash within the next 2 months or 3 months, but it will convert itself into cash very soon. Similarly, expenses. आज सैलरी नहीं दोगे, कल तो देनी पड़ेगी ना सैलरी, नहीं तो वो हड़ताल करेंगे लोग। सैलरी नहीं देगी अगर कंपनी तो क्या करेंगे लोग? पीपल विल गो ऑन स्ट्राइक। अब अमेरिका में वो उसने एलन मस्क ने डिसाइड कर दिया है कि वो पूरा का पूरा यूएसएआईडी बंद कर रहा है। पढ़ा तुमने उसको? इज क्लोजिंग डाउन एन एंटायर डिपार्टमेंट, सैलरीज आर बीइंग फ्रोजन, पीपल आर ऑन स्ट्रीट्स। जैसे ही सैलरी बंद करोगे लोग शोर मचाएंगे कि आप सैलरी बंद करें, केस करेंगे आपके ऊपर। तो एक्सपेंडिचर भी जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी आपको करना पड़ता है इन कैश। ये नहीं है कि एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि आप करोगे ही नहीं उस एक्सपेंडिचर को, करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, महीने 2 महीने के अंदर करोगे, लेकिन तो इसको भी हम कैश मान सकते हैं। भाई आज नहीं तो 2 महीने के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा कैश में।
फिर रह क्या गया? प्रॉफिट में क्या चीज होती है? रेवेन्यू एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टैक्स पेमेंट क्या होता है? कैश में होता है, तो दैट इज ऑल्सो कैश। So what item is there which is not cash item but it is in the profit and loss account? ऐसा कौन सा आइटम होता है जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं होगा? ना आज होगा, ना 15 दिन में होगा, ना 20 दिन में होगा, लेकिन वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज अ कंपोनेंट ऑफ, आई गिव यू अ हिंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो ना प्रॉफिट निकालने के लिए, तो रेवेन्यू को कैश मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज्यादातर कैश मान लिया। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा, पावर एंड फ्यूल, आपको बिल पे करना पड़ेगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी, रेंट लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, ट्रैवल का खर्चा करना पड़ेगा, बिल टेलीफोन के भरने पड़ेंगे, पावर का बिल देना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना। कैश मान लो इसको कि ये कैश में खर्चा हो। कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि कैश में नहीं होता है, उसमें कैश नहीं देना पड़ता, कभी नहीं देना पड़ता। कौन सा होता है वो आइटम? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये बहुत बड़ा आइटम होता है जो कि कंपनी का, इट इज रिड्यूस फ्रॉम द रेवेन्यू टू अराइव एट द प्रॉफिट ऑन विच यू पे टैक्सेस, बट डिप्रिसिएशन डज नॉट हैपन इन कैश। खर्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जब किया 5 लाख रुपए का इस एग्जाम्पल में, तो 5 लाख रुपए की मशीन लाए होंगे, उस 5 लाख रुपए का खर्चा तो शुरू में हो गया आपका। उसके बाद सपोज ये मशीन कितने साल चल रही थी? 4 साल, तो इसका डिप्रिसिएशन हो गया सपोज करो 1,25,000 रुपए साल का, तो 1,25,000 रुपए विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईयर आफ्टर ईयर फॉर द नेक्स्ट 12 years, बट इट विल नॉट हैपन इन कैश, isn't it? So while you are identifying cash flows, what you can do is that you can first make the P&L account. I am giving you a very simple way that you can first make the P&L account. And suppose, how do you make the P&L account? Sales less expenses. So sales less raw material, less salary and wages, and other expenses में मैंने सब जोड़ दिया, पावर, रेंट, सब कुछ जोड़ दिया। Other expenses less depreciation, you arrive at profit, then you pay taxes on this profit, you arrive at profit after taxes. So I can assume that this will be converted in cash very quickly. This will be expended in cash, raw material. This will also be paid in cash very quickly, maybe today, maybe tomorrow, but it will be paid in cash. This will not be expended in cash at all. So this is a cash item. If not today, maybe tomorrow. This is a cash item. If not today, maybe tomorrow. This is a cash item. If not today, maybe tomorrow. But this is a non-cash item. This is again a cash item, not today, maybe tomorrow. So, in the profit and loss account, you have got every item which is a cash item, maybe today or tomorrow, except for depreciation. So, when you draw the, and tax is also a cash item. अब tax निकालने के लिए, you need to compute the profit. और प्रॉफिट निकालने के लिए यू नीड टू कंसिडर डिप्रिसिएशन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंडेटरी है, यू हैव टू डू इट, आई मीन अदरवाइज प्रॉफिट गलत निकलेगा तुम्हारा। सो फर्स्ट द कंपनी विल मेक अ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, and then